Hello student, welcome in the classes of Unix and Shell programming. Today we learn interval regular expression, tag regular expression which are used in the sed in stream editor. This is the last topic of the advanced filter command which is used in Unix, that is in stream editor. So let us see interval regular expression and tag regular expression with examples. So as we already know that three types of basic regular expression which are used in grep and sed. First is the repeated pattern which is used with the ampersand, then interval regular expression which is used with the two curly braces, and the tag regular expression which is used with the brackets. Now interval regular expression known as IRE and tag regular expression known as TRE used with sed and grep. So let us see. We already learned repeated pattern. The ampersand is used as a repeated pattern. That means कि for example हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टर सर्च करवाया, सब्स्टिट्यूट करवाया, उसकी जगह पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लिखा. बट अगर आपने जो चीज पहले सोर्स पैटर्न में डाली है उसको वापस अगर टारगेट में आपको लेना है तो आपको क्या करना है, जस्ट यूज दिस एम्परसेंड. उसके लिए वापस आपको पैटर्न लिखने की जरूरत नहीं है. सो ओवर हियर आई कैन यूज रिपीटेड पैटर्न क्योंकि यही पैटर्न मेरी यहाँ पे रिपीट हो रही है, जस्ट लाइक दैट. And in this example we learn how to use remember pattern and repeated pattern both together. That we search director, that is one pattern, and then substitute that director. So that's why over here I am using this double slashes because this is a remember pattern. So director ही इधर आएगा and then executive director से replace होना है तो वापस director use करना है, that means repeated pattern. So over here I can use this ampersand. So these three commands are performed same. Fine, it will just replace the director with the executive director. This is the repeated pattern. Ampersand. Remember pattern, that is two slashes. Now the next is interval regular expression, that is IRE. Now in the interval regular expression you can use some pattern in curly braces, that is a pair of the curly braces. Now the first option CH, and then over here we can use slash curly braces slash curly braces. Slash is used over here to remove or escape the character. That means के आपको curly braces का real meaning को remove करना है, then you can use this backslash over here. So CH means any character and M, that means के particular character M times occur होना चाहिए, वो मैच होगा. Then over here CH M comma N, that means यहाँ पे range दी है, first number second number. For example 5 to 10 दिया है, 5 comma 10, तो particular यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा या कैरेक्टर लिखा होगा या पैटर्न लिखी होगी वो 5 to 10 टाइम्स अकर होनी चाहिए. Then over here M comma, तो that means कि यहाँ पे आपने जो पैटर्न लिखी है, जो कैरेक्टर लिखा है, जो नंबर लिखा है वो एटलीस्ट M टाइम अकर होनी चाहिए. फाइन, तो ये थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस है जो हम लोग IRE में यूज करेंगे. सो नाउ let us see IRE. So first of all we learn some important points related to IRE, that is all form of IRE have a single character regular expression, that is CH, and it is always a first element. That means कि आपको पहले CH मतलब कोई कैरेक्टर लिखना है, उसके बाद ही मतलब आपको IRE पैटर्न लिखनी है. Then we can use a character class and dot इंस्टेड ऑफ CH, मतलब के कैरेक्टर यहाँ पे आपने CH लिखा तो आप A लिखोगे. फाइन, यस, दैट इज ऑल्सो ओके. एक की जगह पे आप सिंगल डॉट मतलब कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को मैच करवाने वाले हो तो सिंगल डॉट लिखोगे तो भी चलेगा. और पूरा कैरेक्टर क्लास, दैट इज फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट लाइक 0 to 9 इन अ स्क्वायर ब्रैकेट कैरेक्टर क्लास, तो भी आप CH की जगह पे, दैट मीन्स के ये जगह पे यहाँ पे जो CH है वो पर्टिकुलर पैटर्न की जगह पे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डॉट भी यूज कर सकते हो, पर्टिकुलर कैरेक्टर क्लास भी यूज कर सकते हो. फाइन, नाउ इट इज फॉलोड बाय अ पेयर ऑफ एस्केप कर्ली ब्रेसेस which containing either a single number m, एक सिंगल नंबर जो हमने सीखा कि m, then
रेंज दे सकते हैं दैट इज between m to n. Yes, and it determines the number of times the character preceding it can be occur. Now listen one thing, you must have to remember the value of n m और n की वैल्यू 255 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. That means it's a number m and n contain the number that is from 0 to 255 only. Fine, इतने तक ही आप रेंज दे सकते हो. Fine, yes all of you. So now let us see some examples so you get the clear idea about all these things. Okay, so this IRE, interval regular expression, you can use with the grep as well and you can use with the sed as well. Okay, so first of all I can create one telephone directory over here. That means cat and the telephone directory already मैंने बनाई है, जिसमें मैंने नाम लिखा है जय शर्मा and उसका contact number, then चंचल सिंघवी and उसका contact number, अनिल अग्रवाल और उसका कॉन्टेक्ट नंबर. इन दैट कॉन्टेक्ट नंबर सम कॉन्टेक्ट नंबर इज exactly 10 character long and in that file the contact number is exactly 10 digit long. ये दो ऐसे है जो 10 डिजिट के है, बाकी सब 10 डिजिट के नहीं है. सो आई वांट टू फाइंड इट आउट और एक्सट्रैक्ट द एनी न्यूमरल कैरेक्टर विच कैन अकर 10 टाइम्स. एग्जैक्टली 10 टाइम्स नंबर आपके होने चाहिए, कोई भी 0 to 9 से लेके. तो उसका फॉर्मेट कैसे बनाना है देखो, ग्रेप मैंने यूज किया है एंड इन द सिंगल कोट. देन फर्स्ट CH की जगह पे मैंने डाल दिया कैरेक्टर क्लास और नंबर दैट इज 0 to 9. मतलब 0 to 9 के कोई भी डिजिट को मैच करेगा, पर एग्जैक्टली कितने टाइम वो मैंने लिखा है 10. कितने टाइम 10, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के आगे स्लैश, कर्ली ब्रेसेस खत्म होकर उसके आगे स्लैश लिखना पड़ता है. सो CH की जगह पे मैंने यहाँ पे कैरेक्टर क्लास क्या लिखा है 0 to 9 और m की जगह पे लिखा 10. दैट मीन्स कि मुझे फाइल 1 में से ऐसी लाइन ढूंढ के दो जहां पे 0 to 9 डिजिट एग्जैक्ट 10 टाइम्स आती हो. सो आई विल फाइंड इट आउट फ्रॉम दिस फाइल एंड द आउटपुट इज लाइक दैट. यहाँ पे दो ही ऐसे है जहां पे एग्जैक्टली 10 कैरेक्टर के नंबर्स है, अदरवाइज ये लेस देन 10 कैरेक्टर है. दैट्स वाई आई कैन यूज दिस ओवर हियर. फाइन ऑल ऑफ यू, एग्जैक्टली 10 कैरेक्टर, एग्जैक्टली 10 नंबर्स. जो भी कैरेक्टर क्लास में लिखो, नंबर लिखो तो नंबर, कोई कैरेक्टर A to Z लिखो तो कैरेक्टर, दोनों चलेगा. फाइन, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, टू डिस्प्ले द लिस्टिंग फॉर दोज फाइल्स that have the right bit set either for group or others. Right bit set either for group or others. So first of all, right bit मतलब कि आपकी फाइल की परमिशन like R W X, then R W X, your file permission that you know very well, W X. Fine, yes. So in that the first group, the second group and third group. The first group is the user or owner, second group is the groups and third is for the others, like that. Yes, UGO याद रखना, users and owners, groups and others, like that. Yes, so what I want to extract, I want to extract or I want to display the listing for those files. वो फाइल का लिस्ट करो जहाँ पे ग्रुप और अदर्स को राइट बिट सेट किया हो. ग्रुप एंड अदर्स में राइट बिट आता है, वो फाइंड करके देखो. ग्रुप एंड अदर्स को राइट बिट, सो ग्रुप एंड अदर्स को राइट बिट आता है तो वो हम फाइंड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5th कैरेक्टर से लेके सर्चिंग स्टार्ट करना है. 6 7 8, कितने कैरेक्टर तक? 8 कैरेक्टर तक. 5th कैरेक्टर से लेके 8 कैरेक्टर तक हमें सर्चिंग करना है. सो यू कैन सर्च एंड यू कैन मेक सम पैटर्न लाइक दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज हमें कहाँ से मिलेगी? ls-l with showing the long listing of your file. So ls-l के आउटपुट को यह रीडायरेक्ट करवा देते हैं, ठीक है. सो ls-l का आउटपुट जो रीडायरेक्ट होगा, वो रीडायरेक्शन में से हमें क्या ढूंढना है फिर? पर्टिकुलर राइट बिट सेट फॉर ग्रुप्स एंड अदर्स. सो राइट बिट ग्रुप पे 5th पोजिशन पे है और 5th से लेके 8 पोजिशन पे अदर्स के लिए है. तो 5th से लेके 8 पोजिशन में जहां पे W राइट बिट मिले वो सर्च करवाओ. सो आई कैन रीडायरेक्ट दिस ls-l आउटपुट एंड प्रोवाइड सम पैटर्न. सेट प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे मैंने P यूज किया है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे -n लिया है. एंड द पैटर्न इज लाइक दैट, सिंगल कोट. एंड
आपको पता है ls माइनस एल में ये फाइल परमिशन कहाँ पे आती है, स्टार्टिंग में फर्स्ट पोजीशन पे। सो स्टार्टिंग फर्स्ट पोजीशन के लिए मैंने क्या लिखा है, कैरेट। कैरेट में हमें कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर मैच करवाना है, डॉट। यस, कौन सा कैरेक्टर मैच करवाना है, डॉट। तो सिंगल कैरेक्टर के लिए डॉट, और वो 5 से 8 तक, कहां से 5 से 8 तक, और कौन सा कैरेक्टर है, डब्ल्यू। कौन सा कैरेक्टर है, डब्ल्यू। अगर 5 से 8 तक में एक सिंगल डॉट जहां पे डब्ल्यू मिलता है उसको प्रिंट कराओ, तो स्लैश प्रिंट। तो ये मेरी पैटर्न मैंने बनाई दो स्लैश के बीच में, और यहाँ पे वो प्रिंट कराए, पर दो स्लैश के बीच में कोई स्टार्टिंग से एक सिंगल कैरेक्टर लिया, यस, एक एक डिजिट या एक एक कैरेक्टर, और वो 5 से 8 तक में ही आना चाहिए। तो एक एक कैरेक्टर यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5th कैरेक्टर पर अटक गया, यस। फिर 5 से लेके 8 तक, 6 7 8 तक चला, तो 5 से लेके 8 तक में उसको क्या ढूंढना है, डब्ल्यू ढूंढना है। सो इट विल फाइंड इट आउट डब्ल्यू एंड प्रिंट इट। ओके, सो एग्जैक्टली एम और एन के बीच में रेंज में कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को मैंने ढूंढा। देन द नेक्स्ट एग्जांपल इज यू कैन एक्सट्रैक्ट द लाइन बेस्ड ऑन लेंथ, के पर्टिकुलर लाइन की लेंथ इतनी होनी चाहिए और वो ढूंढो। सो यू कैन सी लाइक दैट आई कैन यूज सेड माइनस एन, प्रिंट करवाना है, दैट्स वाई। एंड लाइन के कैरेक्टर्स को ढूंढना है, काउंटिंग करना है, तो कैरेक्टर काउंट करने के लिए मुझे क्या यूज करना है, डॉट, और सिंगल डॉट को काउंट करवाओ। सो आई कैन यूज दिस। सी, हमें ये पैटर्न ऑलवेज ऐसे ही लिखनी पड़ेगी दो स्लैश के बीच में। तो मैंने यहाँ पे एक स्लैश लिखा है, यहाँ पे एक स्लैश और पी, प्रिंट तो करवा दिया। ये दोनों के बीच में पैटर्न लिखी। क्या मुझे सर्च करना है, एक सिंगल कैरेक्टर, डॉट। तो सिंगल कैरेक्टर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 101। तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट होगा और वो कितनी लेंथ तक जाएगा, 101। सो और उसके बाद मैंने लिखा है कॉमा, सो इट विल फाइंड द लाइन लेंथ एटलीस्ट 101, 101 जितनी उसकी लाइन की लेंथ होनी चाहिए, तो वो मैच करके प्रिंट करेगा। सेम विद द नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने स्टार्टिंग से लेके डॉट मतलब एक सिंगल कैरेक्टर को काउंटिंग करवाया, और उसकी लेंथ कितनी चाहिए, 101 से लेके 150। सो आई कैन राइट दिस 101 टू 150। 150 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, दैट्स व्हाई आई कैन राइट ओवर हियर डॉलर, के 101 से स्टार्ट होके 150 में एंड हो ही जाना चाहिए, 151 तक नहीं जाना चाहिए, एग्जैक्टली 150। सो दैट्स व्हाई आई कैन यूज ओवर हियर डॉलर, के लास्ट कैरेक्टर जो होगा वो डॉलर, दैट्स व्हाई 150 नंबर लास्ट होगा उसका लेंथ। सो दैट्स व्हाई आई कैन यूज दिस ओवर हियर। फाइन, यस। सो दिस आर द इंटरवल रेगुलर एक्सप्रेशन, दैट इज I can use over here m, exactly 10 character. Then we can use the range over here m comma n. Then over here m comma मतलब at least particular character like that. Fine, all of you. That is IRE. Now the tag regular expression TRE. Now in tag regular expression, it is relates that you can make a group and breaking the group. आपको particular जो पैटर्न होगी ना, उसका एक पर्टिकुलर लाइन में ग्रुप बनाना है, और वो ग्रुप को डिवाइड करके फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो कैसे, इट रिलेट टू ब्रेकिंग अप अ लाइन इनटू अ ग्रुप। पूरी लाइन, ये जो एक पूरी लाइन है ना, उसको ग्रुप में डिवाइड, जैसे कि ये एक ग्रुप बन गया, जय एक, फिर शर्मा एक, और ये नंबर लिखा है वो एक। तो मैंने एक पूरी लाइन को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। नाउ ये 3 ग्रुप में से मुझे पर्टिकुलर नंबर पहले चाहिए, तो पहला ग्रुप है वो आइडेंटिफाई कैसा होगा, /1 से। दूसरा ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए /2, और तीसरा ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए /3। 3 ग्रुप मैंने आइडेंटिफाई कर लिया अलग अलग। अभी यही ग्रुप को आप सफल कर सकते हो कि थर्ड वाला पहले लिखो, सेकेंड वाला बाद में लिखो, फर्स्ट लास्ट में लिखो, लाइक दैट। सो TRE प्रोवाइड यू द एक्सटेंट द ग्रुप और one or more of the groups, then you can require 2 regular expression. यहाँ पे आपको 2 regular expression ग्रुप के हिसाब से लिखने पड़ेंगे। कैसे, you can just concentrate on the example over here. Now for example, if you want to extract only number, तो आप इस तरह से ब्रैकेट, ऑलवेज ब्रैकेट है तो स्लैश से स्टार्ट होगा और स्लैश से खत्म होगा, ब्रैकेट ऐसे, और उसमें मुझे क्या यूज करना है, जस्ट नंबर। तो मैंने लिख दिया 0 to 9 स्टार, मतलब कितने भी नंबर।
or non-alphabetic. So I can write A to Z between this two pattern, but A to Z or A to Z star multiple, but non-alphabetic. That means over here I can write this caret. तो ये non-alphabetic कैरेक्टर होगा, बट TRE आपको ऑलवेज ये ब्रैकेट में ऐसे ही लिखना है, लाइक दिस. और फिर अगर आप कैरेक्टर क्लास लिख रहे हो तो यू कैन राइट दिस कैरेक्टर क्लास ओवर हियर A to Z, और मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे तो दैट्स व्हाई यू कैन यूज दिस स्टार ओवर हियर. अगर नहीं तो आपको यहाँ पे कैरेट डाल देना है अंदर और A to Z स्टार लिखा तो A to Z के अलावा बाकी सारे कैरेक्टर को मैच करेगा. But remember this thing, if you can use this TRE, then you can use this /bracket उसके अंदर ही आपको पैटर्न लिखनी है. So let us see some examples over here. Now, जैसे मैंने बोला कि एवरी ग्रुप पैटर्न जो होगी वो ऑटोमेटिक अपना लेबल असाइन कर लेगी. पहला ग्रुप आपने डिवाइड किया तो इट विल रिप्रेजेंट एज अ /1, दूसरा आपने डिवाइड किया तो /2, तीसरा होगा तो /3, फोर्थ होगा तो /4, लाइक दैट. यस, और उसको सेपरेट करने के लिए आपको बीच में कॉमा देना है. फाइन, तो आप सेपरेट कर सकते हो. नाउ सी ओवर हियर, मैंने ये एग्जांपल दिया कि ये टेलीफोन डायरेक्टरी जैसी मैंने फाइल बनाई है. नाउ इन दैट फाइल व्हाट आई कैन डू, आई कैन मेक अ ग्रुप दिस एंड दिस, 3 ग्रुप. तो 3 ग्रुप में पहले मुझे सरनेम लिखना है, फिर मुझे नाम लिखना है और फिर कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है. तो मैंने ये एक ग्रुप बना दिया, ये एक ग्रुप बना दिया, ये एक ग्रुप. पर ग्रुप कैसे बनाए देखो ध्यान से. पहला जो नाम है स्पेस है बीच में, सिर्फ अल्फाबेट्स है, दूसरे में भी सिर्फ अल्फाबेट्स और तीसरे में सिर्फ नंबर. सो आई कैन मेक अ ग्रुप लाइक दिस. देखो सब्स्टिट्यूट, यस, स्लैश करके एस करके ये 2 पैटर्न के बीच में मैंने सब्स्टिट्यूट किया है. यस, यहां से स्टार्ट किया, यहां पे खत्म किया, ये यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे खत्म किया, सिंगल कोट. पहला ग्रुप बनाया, दैट इज A to Z स्टार ओनली अल्फाबेट /bracket पहला. तो ये ग्रुप बन गया. बीच में मल्टीपल स्पेसिस है तो मल्टीपल स्पेस और स्टार दे दिया. देन दूसरे ग्रुप में भी अल्फाबेट से है तो वापस मैंने /bracket A to Z स्टार, दैट मीन /bracket ओवर. 2 ग्रुप मेरे बन गए. फाइन. अभी ये जो मेरे 2 ग्रुप बन गए वो 2 ग्रुप को ही इधर उधर करना है, आगे पीछे करना है. सो आई कैन राइट ओवर हियर /2. यहाँ पे स्लैश लिखा है क्योंकि यहाँ पे बैकस्लैश है, उसका मीनिंग मुझे हाइड करना है. तो /2. सो सेकंड ग्रुप जो बनाना वो ग्रुप मैंने पहले डिस्प्ले कर दिया और फर्स्ट ग्रुप को बाद में. सो इट विल डिस्प्ले लाइक दैट. शर्मा पहले आएगा, जय बाद में आएगा. फिर मैंने इसको शॉर्टिंग करवा दिया, दैट्स व्हाई इट्स आउटपुट इज लाइक दैट. अग्रवाल पहले. सो ऑलवेज जो सेकंड फील्ड थी ये वाली, शर्मा, सिंघवी, अग्रवाल, सक्सेना, चौधरी, तो ये सारी पहले आ गई क्योंकि सेकंड ग्रुप को पहले डिस्प्ले करवा दिया. ये डिस्प्ले वाला है, यहां तक पैटर्न बनाई है, फिर ये डिस्प्ले पैटर्न, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है. और जब ग्रुप डिस्प्ले करना है तो बाद में लिखना है कॉमा करके. तो यहाँ पे और फिर नाम आए और कॉन्टेक्ट नंबर एज इट इज. फाइन ऑल ऑफ यू, दैट इज अ TRE, टैग रेगुलर एक्सप्रेशन. नाउ इन टैग रेगुलर एक्सप्रेशन यू कैन कन्वर्ट द डेट फॉर्मेट YYYY ये जो डेट फॉर्मेट है ओरिजिनल है. नाउ आपको ये कन्वर्ट करके ऐसा लिखना है, आगे 19 आना चाहिए, फिर 2 डिजिट का ईयर, फिर मंथ एंड डेट, ऐसे मुझे चेंजेस करना है. सो व्हाट कैन आई डू, सी ओवर हियर. ये मेरी एक फाइल है जिसमें मैंने 3 लाइन ऐसे ली है. 3 लाइन में ये मेरा जो फॉर्मेट है, दैट मीन्स कि ये फॉर्मेट जो भी है वो फॉर्मेट को मुझे ऐसे फॉर्मेट में करना है. 19 पहले, फिर ईयर आना चाहिए, फिर मंथ और फिर डेट. फाइन. सो इट इज लाइक दैट. आई कैन यूज ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जैसे कि 2 डिजिट है, फिर स्लैश है, वापस 2 डिजिट है, स्लैश है और वापस 2 डिजिट है. ये पैटर्न बन गई. तो ये पैटर्न को मैंने ऐसे लिखा. नाउ रिमेंबर, मैंने यहाँ पे स्लैश की जगह पे कैरेट यूज किया. सो इनसेड आप स्लैश की जगह पे कैरेट भी यूज कर सकते हो, कोई भी ऑपरेटर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. अगर स्लैश लिखोगे तो भी चलेगा, कैरेट लिखोगे तो भी चलेगा. सो मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे दिखाने के लिए क्या यूज किया है, कैरेट यूज किया है. सो आई कैन यूज सब्स्टिट्यूट कैरेट ओवर हियर एंड कैरेट यहाँ पे एंड हो गया. ये 2 तो मैंने
स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन आपको बता दी सिंगल कोट के अंदर। फिर पहला ग्रुप मैंने आइडेंटिफाई किया दैट 2 डिजिट, तो 2 डॉट ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ये ब्रैकेट खत्म हुआ, 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद एक स्लैश आता है, यस ओके, तो मैंने यहाँ पे ये मेरा पहला ग्रुप खत्म हो गया। फिर वापस 2 डिजिट और एक स्लैश आता है, तो ये 2 डिजिट एंड स्लैश, दूसरा ग्रुप खत्म हो गया। फिर वापस 2 डिजिट और ग्रुप आता है, तो ये मेरा तीसरा ग्रुप भी मैंने खत्म कर दिया। फिर मुझे क्या चाहिए, फिर मुझे चाहिए 19 पहले। सो ये तो मेरा स्लैश यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये 19 को एज एन नंबर डिस्प्ले करने के लिए। आगे हम लोगों ने यहाँ पे नहीं स्लैश लिखा था, ये जगह पे /2 है, दैट्स वाई मैंने इसको एस्केप यहाँ पे किया। उसी तरह से यहाँ पे भी मुझे इसको एस्केप करना पड़ता है, सो यहाँ पे कैरेट डाला। नाउ 19 मुझे पहले चाहिए, तो मैंने 19 लिख दिया। फिर मेरे ईयर, तो ईयर मेरा 3rd पोजीशन पे है, तो 3rd ग्रुप पहले। फिर मंथ 2nd पोजीशन पे है, तो 2nd पे, और 1 पे मेरा डेट, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे मंथ है, यहाँ पे ईयर, ये 3rd ग्रुप, 2nd ग्रुप और 1st ग्रुप। तो 3rd पहले, फिर 2nd एंड 1 एंड फिर नेम ऑफ द फाइल। सो सी ओवर हियर द आउटपुट एग्जैक्टली 19, फिर 52 ईयर, ये खत्म हुआ। फिर 12 डेट और 12 मंथ, सेम वे 19, फिर 50 ईयर, 03 is the month, 2nd and 12 is the date. Then 1943 is the year, then 04 is the month and 19 is the date. So ये जो पूरा डेट फॉर्मेट था उसको मैंने ऐसे सिंपल नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। यस, सो आर यू गेटिंग दिस ऑल ऑफ यू? यस, नाउ इन सेट वी कैन यूज दिस IAC, ये एक बेसिक समरी जैसा है जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है सेट के अंदर। I फॉर इंसर्ट, A फॉर अपेंड, C फॉर चेंजिंग, D फॉर डिलीट द लाइन। 10 क्यों लिखा? दैट मीन्स it will quit your lines after reading first 10. Then P मतलब प्रिंटिंग, बट जब जब P यूज करोगे -N यूज करना है। 3, $P का मतलब द लाइन 3 से स्टार्ट होके एंड तक जाएगी। $P मतलब it will display all line except the last line. Then ये एक पैटर्न कॉमा करके दूसरा पैटर्न, दैट मीन्स पर्टिकुलर ये पैटर्न और ये पैटर्न जहां जहां पे मिलेगी वो उसको प्रिंट करो। क्यों मतलब क्विट, आपने जो लाइन जैसे 10 क्यों लिखा तो 10 के बाद क्विट कर देगा। आर दैट मीन्स इट विल क्विट आफ्टर द रीडिंग अप टू पर्टिकुलर लाइन। देन W मतलब इट राइट एड्रेस लाइन टू द फाइल, दैट मीन्स के W आपने लिखा, मैंने एग्जांपल दिखाया था कि मैनेजर, तो सिर्फ मैनेजर लिख के W करके तो दूसरी फाइल में कॉपी हो जाता है, लाइक दैट। देन S substitute particular expression 1 to expression 2. Then address line, it will replace 10 to 20 occurrences of this particular expression and replace with the particular expression. Then it will replace all the occurrences of S1 in all the lines and expression to S2 globally. G लिखा, that means globally. And it will replace all the occurrences of dash with the colon in a globally. So over here इसका ही एग्जाम्पल दिया है कि पहले एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से रिप्लेस करो ग्लोबली। सो दिस आर द समरी ऑफ द सेड कमांड। फाइन ऑल ऑफ यू, आई होप यू गेटिंग टुडेज सेशन। फाइन, ओके, बाय, थैंक यू।